Raymond Davis has been catapulted from an obscure job at the American Embassy in Pakistan. A murderer is a murderer. قومی وقار کے لیے سر اٹھانا پڑتا ہے. ہم نے سر جھکانا سیکھا ہے. ہم نے سر جھکانا سیکھا ہے. قوم کو ریمنڈ ڈیوس کی گردان چھوڑ دینی چاہیے. We expect Pakistan to recognize Mr. Davis as a diplomat. اسے رہا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. بس انہوں نے چھوڑ دینا. مجھے انصاف چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. I feel no remorse. تاریخ 27 جنوری سن 2011. نام ریمنڈ ڈیوس. یہ نام پاکستان کے گلے کی وہ ہڈی بن چکا تھا جسے اگلا جا سکتا تھا اور نہ ہی نکلا. جو بھی ہو جائے ہم نے نیٹو کے سپلائی کو پختونخوا سے نہیں جانے دینا. اس دن کچھ ایسا ہوا کہ اگلے 49 روز کب سورج اگا کب شام ڈھلی پاکستان کے لیے جیسے وقت رک گیا ہو. یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کا جسم دہشت گردی نے چور کر رکھا تھا اور فضا سے امریکی ڈرون حملے زخموں پر نمک چھڑک رہے تھے. ایک طرف فوجی جوان شہید ہو رہے تھے، دوسری طرف حکومت پاکستان کا امریکی حمایت میں کھڑا رہنے پر اپنے بھی خفا تھے. سیاسی معاشی استحکام اور امن و امان سب پاکستان سے روٹھے نظر آتے تھے. جنوری 2011 کو ایسا کیا ہوا تھا اور اس کے بعد ایک ایک دن کیسے گزرا، اس پر تفصیل سے بات ویڈیو میں آگے چل کر ضرور کریں گے، مگر سب سے پہلے اس کہانی کے گرد کرداروں کے بارے میں جانتے ہیں جن کا رول بہت اہم تھا. پاکستان میں اس وقت صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، آرمی چیف جنرل پرویز کیانی، ISI ہیڈ شجاع باشا، وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک، وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ تھے، جبکہ اس وقت امریکہ کے صدر براک اوباما اور CIA کے ڈائریکٹر لیون پنیٹا، امریکی فوج کے سربراہ ایڈمرل مائک ملن اور امریکہ میں پاکستانی سفیر حسین حقانی تھے. یہ وہ کردار تھے جن پر دنیا بھر کے میڈیا کی نظریں جمی رہی. یاد رہیں کہ 27 جنوری 2011 کے اس واقعے کے ٹھیک 3 ماہ بعد ایبٹ آباد میں ایک آپریشن میں اسامہ بن لادن کو بھی مار دیا گیا تھا. 27 جنوری 2011 کو دن دہاڑے 2 پاکستانیوں کا قتل عام ہوتا ہے جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان سفارتی بحران کا باعث بننے والا تھا. اس دن ایسا کیا ہوا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کو اس داغ کو دھونے کے لیے 49 روز لگے اور یہ داغ آج تک نہیں دھل پایا. 27 جنوری 2011 کو دوپہر تقریباً 1:20 پر لاہور کے کرتبہ چوک میں ایک سفید سیوک گاڑی آ کر رکتی ہے. اس جگہ پر شہر کا جیل روڈ اور فیروزپور روڈ دونوں آ کر ملتے ہیں. ٹریفک کے سرخ سگنل پر سیوک گاڑی میں ایک چوڑا سفید شخص بیٹھا ہے جسے ایک ہی نظر میں کوئی بھی غیر ملکی قرار دے سکتا تھا. اتنے میں گاڑی سے آگے ایک موٹر سائیکل رکتا ہے جس پر 2 نوجوان سوار ہیں، ایک 18 سالہ محمد فہیم اور دوسرا 23 برس کا محمد فیضان. اچانک گاڑی کے اندر بیٹھا شخص اپنی گلاک 17 پسٹل سے فائر کرتا ہے اور یہ فائر 18 برس کے فہیم کا سینہ چیر دیتا ہے جسے موقع پر ہی وہ جاں بحق ہو جاتا ہے. اب فیضان موٹر سائیکل سے اتر کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور گورا گاڑی سے نکل کر پیچھا کرتا ہے اور فیضان کے سینے پر 6 فائر مار کر تسلی سے گاڑی میں واپس چلا جاتا ہے. گاڑی کے اندر اور باہر نکل کر جس انداز سے اس نے بغیر پلک جھپکتے فائر کیے، یہ کوئی عام قاتل نہیں بلکہ امریکہ کا ویل ٹرینڈ ایجنٹ ریمنڈ ڈیوس تھا. دو پاکستانیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد بھی ریمنڈ ڈیوس گاڑی میں سکون سے امریکی سفارت خانے فون کرتا ہے. وہاں پر کھڑے لوگوں کے لیے حیرت کی بات تب ہوتی ہے جب ریمنڈ ڈیوس بہت سکون سے گاڑی سے دوبارہ واپس آتا ہے اور گولیوں سے چھلی فہیم اور فیضان کی تصاویر لیتا ہے.
रेमंड डेविस तस्वीर लेने के बाद दोबारा फिर गाड़ी में बैठ जाए और अपने दरवाजे लॉक कर लेता है। अब इर्द गिर्द खड़े लोगों के चेहरों पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। दूसरी तरफ अमेरिकी सफारतखाने से एक लैंड क्रूजर जेल रोड से तेजी से उस जगह की तरफ आ रही होती है, मगर चूंकि इस वाक़े की वजह से बहुत रश हो जाता है और ट्रैफिक जैम से सड़क तकरीबन बंद हो चुकी थी, लैंड क्रूजर मुखालिफ सिमत चलना शुरू हो जाती है। अब इस रोड पर सब गाड़ी एक तरफ और अमेरिकी लैंड क्रूजर मुखालिफ सिमत से तेजी से आ रही होती है। ऐसे में ये तेज रफ्तार गाड़ी एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारती है, जिससे मोटरसाइकिल सवार अब्दुल रहमान मौके पर ही जान बहक हो जाता है। अब इस वाक़े में मरने वालों की तादाद 3 हो चुकी थी, मगर अफसोस की बात यह थी कि सिफारत खाने से आने वाली गाड़ी मोटरसाइकिल सवार को कुचलने के बाद वहीं रुकने के बजाय तेजी से निकल जाती है, जैसे उसे गुमान हो कुछ नहीं हुआ, सब संभाल लूंगा। इधर करतबा चौक पर लोगों ने रेमंड डेविस की गाड़ी को घेर रखा था। एक ट्रैफिक वार्डन गाड़ी के पास आता है और इसे बाहर निकलने का कहता है, मगर रेमंड डेविस गाड़ी भगाकर निकलने में कामयाब हो जाता है। तब तक 15 पर इस दोहरे बल्कि तिहरे कत्ल की इत्तला हो चुकी थी और पुलिस अब इस सफेद सिविक गाड़ी का पीछा करती है। रेमंड डेविस भागकर जब पुरानी अनारकली तक पहुंचता है तो पुलिस इसे हर तरफ से घेर लेती है। वो शायद किसी तरह से अमेरिकी सफारतखाने तक पहुंचना चाहता था, मगर अब पुलिस के शिकंजे में था। रेमंड डेविस को पहले फौजी छावनी लाया जाता है। तलाशी के दौरान इससे ग्लॉक 17 पिस्टल, जीपीएस, कैमरा, फोन और मोटरोला का 2-वे रेडियो निकलता है। जी उसके पास एक पिस्टल बरामद हुई थी जिस पे मुकदमा दर्ज हो चुका है। बाकी उसका कुछ चीज़ें मजीद थी, जिसमें कैमरा वगैरह था, वो भी हमने उसकी फर्द बना ली है। जब पुलिस कैमरे की तलाशी लेती है तो सब हैरान रह जाते हैं। कैमरे में फौजी तनसीबात, शहर की अहम मसाजिद और इमारतों की तस्वीर, यहाँ तक के वाघा बॉर्डर के करीब फौजी बख्तर्स की तस्वीर भी रेमंड डेविस के कैमरे से निकलती है। उन दिनों लाहौर और कराची समेत पाकिस्तान के बड़े शहर दहशतगर्दी की लपेट में थे। ऐसे में रेमंड डेविस फौजी तनसीबात और मसाजिद की तस्वीर क्यों कर बना रहे थे? एक खबर ये भी आई कि इस वाक़े से कुछ रोज पहले रेमंड डेविस ने लाहौर के कैंट के एरिया की एक बड़ी मस्जिद के इमाम से मुलाकात भी की थी। इस वाक़े ने चंद ही घंटे में पाकिस्तान का मंजरनामा बदल दिया था, मगर अभी दुनिया का मंजरनामा भी बदलने वाला था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ISI के चीफ शुजा पाशा ने CIA के डायरेक्टर लियोन पुनेटा से ये तस्दीक करने को कहा कि क्या रेमंड डेविस अमेरिकी जासूस हैं, मगर इनको ना में जवाब दिया जाता है। शुजा नवाज जो पाकिस्तानी अमेरिकन डिफेंस एनालिस्ट हैं, इनकी किताब द बैटल फॉर पाकिस्तान के मुताबिक रेमंड डेविस एक सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर थे, जिन्होंने 2004 के दौरान अफगानिस्तान में अमेरिकी हुकूमत के बड़े कॉन्ट्रैक्टर डेन कॉर्प इंटरनेशनल के साथ पहली असाइनमेंट पर काम किया। वो सदर हामिद करजई के बॉडीगार्ड्स की टीम में काम करते थे। इनकी यौमिया तनख्वाह $600 थी। इसके बाद रेमंड डेविस पाकिस्तान में बतौर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर आया। पहले पेशावर में, उसके बाद इस्लामाबाद में अमेरिकी सफारतखाने के लिए काम किया। वो लाहौर में अमेरिकी कौंसल खाने के साथ 2009 से 2011 तक वाबस्ता रहा। सब बातें इस तरफ इशारा कर रही थी कि रेमंड डेविस CIA के लिए काम करता था। पाकिस्तानी मीडिया ने इसे CIA का पाकिस्तान में आला ओहदेदार भी जाहिर किया। इस खेल में अब एंट्री होती है कार्मिला कॉनरॉय की, जो लाहौर में अमेरिकी सफारतखाने की कॉन्सुलेट जनरल थी। कार्मिला अमेरिकी सफारतखाने की वाहिद ओहदेदार थी जिनके बारे में रेमंड डेविस ने अपनी किताब द कॉन्ट्रैक्टर में लिखा कि वो सिर्फ कार्मिला कॉनरॉय पर ही भरोसा करते थे और हर सूरत हाल को कार्मिला ने बहुत तहम्मुल के साथ हैंडल किया। रेमंड डेविस केस में अहम किरदार निभाने पर कार्मिला को CIA की तरफ से सील मेडल अवार्ड भी दिया गया। ये बहुत बड़ा अवार्ड है जो खास इशू पर अहम किरदार निभाने वाले को CIA देता है। कार्मिला को ये अवार्ड क्यों मिला, ये वीडियो में आगे चल के आपको पता चल जाएगा। कार्मिला ने रेमंड से कहा कि किसी को भी कुछ बताने की जरूरत नहीं, अगर कोई दबाव डाले तो कहना कि मैं अमेरिकी सिफारतकार हूं और मुझे सिफारती मिशन के हवाले किया जाए। पुलिस हिरासत में रेमंड डेविस ने कहा कि फहीम और फैजान के पास भी पिस्टल था, अगर वो गोली ना चलाता तो खुद मारा जाता। दोनों के लवाहकीन ने पुलिस को बताया कि वो अदालती पेशी से वापस आ रहे थे, किसी के साथ तनाजा था, इसलिए दोनों ने पिस्टल पास रखा था।
और ये सभी लोगों ने देखा, उनके पास असला भी था और ये मुकम्मल उसकी गाड़ी पुलिस की पीछे थी, लेकिन वो रुक नहीं रहे थे उनके साथ भी और गाड़ी को हिट करते जा रहे थे। जाए वकुआ पर खड़े लोगों ने बताया कि रेमंड डेविस किसी को गाड़ी मारकर भागे थे और इनकी गाड़ी पर एक्सीडेंट के निशान थे। फहीम और फैजान ने इसलिए रेमंड डेविस का पीछा किया था। पुलिस के मुताबिक भी दोनों फहीम और फैजान से बरामद होने वाले पिस्टल में कोई भी फायर करने के लिए तैयार नहीं था, जिससे ये इशारा मिलता है कि डेविस ने किसी फौरी खतरे या धमकी के बगैर दोनों पर गोलियां चलाई। अब अगले रोज यानी 28 जनवरी को रेमंड डेविस को मॉडल टाउन लाहौर कचहरी पेश करना था, जहां मीडिया की बड़ी तादाद पूरा दिन उसका इंतजार करती रही। जब अदालती वक्त खत्म हुआ तो पुलिस ने एक बख्तर बंद गाड़ी में रेमंड डेविस को अदालत पेश किया। इस अदालत में पुलिस की तरफ से ऐसी सिक्योरिटी पहले कभी देखने को नहीं मिली। रेमंड डेविस पर दफा 302 के तहत मुकदमा तो दर्ज हो चुका था और अब इसे कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया और सिक्योरिटी की वजह से तमाम तर समातें अब जेल में होना थी। पाकिस्तानी और इंटरनेशनल मीडिया दोनों का रुख इस हाई प्रोफाइल केस पर था, बट पाकिस्तानी मीडिया पर एक नाम का बहुत चर्चा था और वो नाम था हुसैन हक्कानी। इन दिनों अमेरिकी अहलकारों की बड़ी तादाद पाकिस्तान में थी और पाकिस्तानी मीडिया में तब अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी सफीर हुसैन हक्कानी पर इल्जाम लगा कि वो अमेरिका के बहुत करीबी हैं, इसलिए बड़ी तादाद में अमेरिकी एजेंट्स की पाकिस्तान में मौजूदगी इनकी सहूलत कारी से हुई। हुसैन हक्कानी 2004 से अमेरिका में थे, मगर सफीर के ओहदे पर 2008 से 11 तक रहे। फिर मेमोगेट स्कैंडल आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हुसैन हक्कानी से जुड़ा मेमोगेट स्कैंडल भी पाकिस्तानी सियासत के शतरंज की अहम बिसात है, जिस पर मुख्तसर गुफ्तगू आगे चलकर जरूर करेंगे, क्योंकि इस स्कैंडल ने भी पाकिस्तानी सियासी मंजरनामा बदल कर रख दिया था। अब उंगलियां हुसैन हक्कानी की तरफ उठ रही थी, जिसका जवाब देना उनके लिए बहुत अहम था। एक बड़ा इमदादी पैकेज एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे लोग पाकिस्तान आ रहे थे और उनमें से कुछ लोगों ने अमेरिका के लिए कुछ किया। कहने को रेमंड डेविस अब कोर्ट लखपत जेल में था, मगर इन्हें रिपोर्टेडली वीआईपी सहूलियत दी गई। वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि रेमंड डेविस को जेल में कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। मीडिया चीख कर बता रहा था कि रेमंड ने जेल में सबसे पहले अपना वॉशरूम कमोड तब्दील करवाया, जो पुलिस एहलकार इनकी ड्यूटी पर थे सबसे असलहा लिया गया। खाना देने से पहले स्पेशल कुत्तों से चेक कराया जाता था कि कहीं कोई जहर न दे दे। अमेरिकी सफारत खाने ने जेल हुकाम को एक लिस्ट दी और सिर्फ वही लोग रेमंड डेविस से मुलाकात कर सकते थे। उस लिस्ट में उनके नाम, आईडीज और तमाम तर तफसीलात शामिल थी। ये इसलिए किया गया था कि कोई खुद को अमेरिकी एहलकार बताकर रेमंड डेविस से मुलाकात ना कर ले। हालांकि ये इतना आसान नहीं था और रेमंड डेविस खुद वेल ट्रेंड था और ऐसी ही सिचुएशन को डील करना उसको सिखाया गया था। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने एक तकरीब में रेमंड डेविस को अमेरिकी सिफारतकार करार दे दिया और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी यानी सिफारती इस्तिस्ना मांगी, जिसका मतलब है कि अगर किसी सिफारतकार पर मेजबान मुल्क में कोई कानूनी मुकदमा बनता है तो आमतौर पर इस मुल्क की पुलिस या अदालतें इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि इसे सिफारती इस्तिस्ना हासिल होती है। We expect Pakistan, that's a signatory, and recognize Mr. Davis as a diplomat to abide by the same convention. ओबामा के इस बयान ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सिफारती खलीज और बढ़ा दी, क्योंकि दफ्तर खारजा को दी गई किसी लिस्ट में भी रेमंड डेविस का नाम बतौर सिफारतकार दर्ज नहीं था और अमेरिका ने बाद में इसे सिफारती गलती करार दिया। पाकिस्तानी सड़कों पर अलग ही मंजर था, क्योंकि ऑपोजिशन, दीनी जमातें और आम शहरी शदीद गुस्से में थे। मुतालबा सिर्फ एक था कि रेमंड डेविस को तख्ते-ए-दार पर लटकाया जाए और इसको फौरी तौर पे केस चला के कानून के मुताबिक कैफर किरदार तक पहुंचाए। बैनुल-अक़वामी मीडिया की नजरें पाकिस्तानी मीडिया की 24 घंटे की कवरेज और सड़कों पर लोगों के गुस्से के बावजूद अमेरिकी दबाव पर इस्लामाबाद का रंग बदलने लगा था। मगर ऐसी घड़ी में एक शख्स के बयान ने माहौल बदल दिया। ये वही हुकूमती ओहदेदार थे जिनके बारे में रेमंड डेविस ने अपनी किताब में लिखा कि इस पाकिस्तानी वजीर ने बहुत टफ टाइम दिया, और वो नाम था वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी। मुझे ये कहा गया अमेरिका का सफारत खाना ब्लैंकेट इम्यूनिटी का मुतालबा कर रहा है।
हमारी राय में वो ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं बनती। कई दफा कौमी वकार के लिए सर उठाना पड़ता है। हमने सर झुकाना सीखा है। रेमंड डेविस ने अपनी किताब में लिखा कि शाह महमूद कुरैशी भी अमरीकियों के अच्छे दोस्त थे, मगर इस केस में शाह महमूद कुरैशी ने जरा भी लचक नहीं दिखाई। चंद दिनों में शाह महमूद कुरैशी ने वजारत खारजा जैसी गद्दी से इस्तीफा दे दिया। लोगों में यह तासुर जाने लगा कि शाह महमूद कुरैशी झुके नहीं, बिके नहीं, बल्कि चट्टान बनकर खड़े रहे। मगर इससे हुकूमत के लिए मुश्किल और बढ़ गई। लोगों में यह चहमगोइयां होने लगी कि रेमंड डेविस केस में पाकिस्तानी सरकार अमरीकी दबाव का बोझ संभाल नहीं पा रही। Pakistanis have been protesting what they see as American pressure to win the release of a US State Department employee. शाह महमूद कुरैशी के ये अल्फाज लोगों के दिलों में घर कर गए कि हमने सर झुकाना सीखा है, मगर अब सर उठाने का वक्त है। एक तरफ अमरीकी दबाव और दूसरी तरफ सड़कों पर शहरियों के एहतजाज ने हुकूमत की नींदें उड़ा दी। ऐसा लगता नहीं है हमें इंसाफ मिले, क्यों हुकूमत नहीं हमारे साथ। कहते ने कि ਤੁਹਾਨੂੰ पूरे खानदान बम ला के डा देना, ਤੁਸੀਂ बयानबाजी अमेरिका के बारे बंद करो। उधर फहीम के गम से निढाल उनकी अहलिया को हुकूमती लहजा तब्दील महसूस होता है। कहीं ये केस दब ना जाए, फ्रस्ट्रेशन में आकर उनकी अहलिया शुमाइला कंवल इंतहाई कदम उठाती है। उसे रिहा करने की कोशिश हो रही है, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। मुझे इंसाफ के बदले इंसाफ चाहिए। जिस देश में शुमाइला कंवल ने आंखें खोली, इन्हीं से ही मायूस होकर वो अब्दी नींद सो जाती है। मगर हॉस्पिटल में मीडिया के सामने उनके आखिरी अल्फाज हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज खड़ा कर गए। पाकिस्तान के बड़े शहरों में लोगों के जुलूस और एहतजाज ने तूफान खड़ा कर दिया। उधर शुमाइला कंवल की आखिरी रसूमात पर फैसलाबाद की हवा भी बदल जाती है। जनाजे पर भारी पुलिस नफरी बुला ली और जनाजा चलने से लेकर कब्रिस्तान के अंदर उसकी तदफीन होने तक ये लोग लम्हा बलहमा हुकामे बाला को इतला दे रहे थे कि अब जनाजा इस जगह से गुजर रहा है, अब इस जगह पर लोग रुके हुए हैं। सीनियर सहाफी तलत हुसैन ने डॉन टीवी पर अपने प्रोग्राम में कहा कि उन्होंने फैसलाबाद में उन एसएचओस को ड्यूटी पर देखा जिनकी शोहरत इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थी, और वो हर मोड़ पर इदारों को बाखबर कर रहे थे कि जनाजा कहां से गुजर रहा है। पुलिस की कोशिश थी कि तदफीन जल्द हो जाए। बैनुल अक़वामी मीडिया पर भी अमेरिका ये सब कुछ देख रहा था और उनके लिए एक और बड़ा चैलेंज भी सामने था। उस वक्त तक अमेरिका ने एबटाबाद में उसामा बिन लादेन की मुकम्मल खोज लगा रखी थी, लेकिन वो अपने कीमती एसेट रेमंड डेविस को भी पाकिस्तान के रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहते थे। अमेरिका को डर था कि अगर एबटाबाद ऑपरेशन किया तो पाकिस्तान कभी भी रेमंड डेविस को नहीं छोड़ेगा। उसका खदशा रेमंड डेविस ने अपनी किताब में बादज़ा किया भी। फरवरी के दूसरे हफ्ते दो अहम वाकयात हुए। सेनेटर जॉन कैरी, जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के पाकिस्तान के लिए चीफ डिप्लोमेट थे, उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान रेमंड डेविस को अमेरिका के हवाले कर दे तो अमेरिका कानूनन सजा देने की यकीन दहानी कराता है। Our government to conduct a criminal investigation. That's our law. And I can give you the full assurance of our government today that will take place. इस वाक़े में बड़ा ट्विस्ट 21 फरवरी को आया जब अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर हुसैन हक्कानी ने रिपोर्टेडली CIA हेडक्वार्टर में डायरेक्टर ल्यून पनेटा से मुलाकात की और इन्हें इस मसले का एक हल बताया। अल्लाहु अकबर। अब रेमंड डेविस केस को इस्लामी कानून दियत यानी खून बहा रकम अदा करके बचाने का मंसूबा बनाया जाने लगा। शुजा नवाज ने अपनी किताब द बैटल ऑफ पाकिस्तान में लिखा कि हुसैन हक्कानी ने इन्हें बताया था कि अमरीकियों को दियत देकर रेमंड डेविस को छुड़वाने का मशवरा खुद उन्होंने दिया था। दूसरी तरफ रेमंड डेविस केस की समाअत कोट लखपत जेल में होती रही। मुतासरीन के वकील असद बट थे जिन्होंने ये केस मुफ्त लड़ने का ऐलान किया था। असद बट इस केस में दूसरे वकील थे और पहले वकील ने मुबैना तौर पर दबाव की वजह से केस लड़ने से इनकार कर दिया था। रेमंड डेविस के वकील जाहिद बुखारी थे जो पाकिस्तान के नामवर क्रिमिनल डिफेंस लॉयर माने जाते थे। वो बाद में मेमोगेट स्कैंडल में पाकिस्तानी सफीर हुसैन हक्कानी के डिफेंस काउंसिल भी थे। उनसे पहले हुसैन हक्कानी का केस आसमा जहांगीर लड़ रही थी जिन्होंने बादशाह इस केस से अलग होने का फैसला किया था। दिन गुजरते गए। इस दौरान पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत शहरियों को यकीन दिलाती रही कि मुतासरीन को भरपूर इंसाफ दिया जाएगा। शुमाइला कंवल की खुदकशी के बाद
फहीम और फैजान के अहले खाना के लिए भी हालात कुछ खास नहीं बदले। अहले खाना ने मीडिया पर बयान दिया कि इन पर सुलह करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इस दौरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ बैरून मुल्क दौरे पर चले जाते हैं। तमाम मामलात 16 मार्च की समाअत को मुकम्मल करने का मंसूबा बनाया गया। पाकिस्तानी मीडिया बता रहा था कि 16 मार्च को रेमंड डेविस पर फर्दे जुर्म आयद की जाएगी, मगर इससे 2 रोज पहले यानी 14 मार्च को फहीम और फैजान के खानदान के पूरे 18 लोग एकदम गायब हो जाते हैं। रेमंड डेविस ने अपनी किताब में लिखा था कि इन्हें कोर्ट लखपत जेल में लाया गया था क्योंकि वो दियत यानी खून बहा रकम लेने पर राजी नहीं थे। मुतासरीन के वकील असद बट ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि वो बार बार अपने क्लाइंट से राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, मगर किसी से राब्ता नहीं हो पाया। जब 16 मार्च का दिन आया तो लवाहिकीन का वकील बन के वो कोर्ट लखपत जेल पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें एक कमरे में बिठा दिया जाता है। असद बट ने कहा कि अभी 2-3 घंटे गुजरे थे, इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो खुद इस कमरे में बैठे हैं या फिर जबरदस्ती बिठाया गया है। कुछ देर बाद उन्होंने अपने असिस्टेंट को इशारा किया, जिस पर उन्होंने वॉशरूम जाने की इजाजत मांगी, मगर उन्हें मना कर दिया गया। असद बट ने कहा कि इन्हें इस कमरे में तकरीबन 7 घंटे हब्से बेजा में रखा गया। उधर अदालती कार्रवाई शुरू हुई और रेमंड डेविस को एक पिंजरे में अदालत लाया गया। रेमंड डेविस ने अपनी किताब में इस दिन को ड्रामाई दिन करार दिया। वो कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं कि इसका मकसद मुझे लोगों से बचाना था या फिर लोगों को मुझसे महफूज रखना। कार्रवाई उर्दू में चल रही थी। साफ है रेमंड डेविस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अचानक शोर हुआ जिससे रेमंड डेविस परेशान हो गया। इन्हें कार्मिला ने बताया कि जज ने अदालत को शरी अदालत में तब्दील कर दिया है, यानी अब इस्लामी कानून के मुताबिक फैसला होगा। इस्लामी अदालत का सुनकर रेमंड डेविस बहुत डर जाता है। कहते हैं कि हर समाअत का सामना रेमंड डेविस ने बड़े निडर अंदाज से किया था, मगर जब उसने इस्लामी अदालत का नाम सुना तो वो घबरा कर बैठ गया। कार्मिला उसे समझाती है कि घबराओ नहीं, इस तरीके से तो इसे बाहर निकालने का बंदोबस्त किया गया है। लवाहिकीन को खून बहा रकम मिलेगी और तुम रिहा कर दिए जाओगे। डेविस की किताब में यह दावा किया गया कि अदालती कार्रवाई के दौरान उन लवाहिकीन को अदालत के बाहर गन पॉइंट पर रखा गया और उन्हें कहा गया कि वो मीडिया के सामने जुबान नहीं खोलेंगे, और लवाहिकीन एक एक करके खामोशी से जज के सामने पेश होते और अपना शिनाख्ती कार्ड दिखाते। जज ने तमाम लवाहिकीन से पूछा कि इन पर कोई दबाव तो नहीं। परेशान चेहरे और झुके हुए सर के साथ उन्होंने जवाब दिया नहीं, जिसके बाद उन्हें रसीद मिलती और वह कमरा अदालत पाकिस्तान में बनने वाली इस्लामी अदालत से बाहर चले जाते। वकील असद बट अभी तक अपने असिस्टेंट के साथ कमरे में बंद थे, मगर कमरे की खिड़की से उन्होंने मट्टी उड़ाती बर्क रफ्तार गाड़ियां जेल के बैरूनी गेट जाते देखी। उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा, मानो ना मानो रेमंड डेविस को रिहा कर दिया गया है। खून बहा रकम यानी दियत में दी जाने वाली रकम $24 लाख थी, यानी एक एक के हिस्से में $1,30,000 आए। इस पर भी एक इशू बना क्योंकि अमेरिकी वज़ीर खारजा हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि ये रकम अमेरिका ने अदा नहीं की है। रेमंड डेविस को लाहौर के पुराने एयरपोर्ट पहुंचाया गया, जहां अमेरिकी एयरफोर्स का तैयारा उसका इंतजार कर रहा था, मगर उस दिन वो तैयारा रेमंड डेविस के साथ पाकिस्तान का मान सम्मान भी ले उड़ा। रेमंड डेविस पाकिस्तानी हदूद से बहुत दूर जा चुका था। वकील असद बट के मुताबिक इन्हें भी कमरे से बाहर जाने की इजाजत मिल गई। लवाहिकीन के चेहरों पर अजीब सी उदासी थी। बाद में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इन फैसलों के बारे में मीडिया को आगाह किया। रेमंड डेविस ने जो कत्ल किया है, सारी कौम सड़कों पर निकलेगी। शहरी सड़कों पर निकल आए, हर तरफ एहतजाज और शोर शराबा था, मगर 4 पाकिस्तानियों की कत्ल की वजह बनने वाला अमरीकी एजेंट को पाकिस्तानी हुकूमत महज 49 रोज ही जेल में रख पाई। इस वाक़े के 2 रोज बाद यानी 18 मार्च को ISI के चीफ शुजा पाशा को रिटायर होना था, मगर इन्हें 1 साल की तोसी दे दी गई। रेमंड डेविस को अमेरिका पहुंचा दिया जाता है, जहां इस पर कोई फौजदारी केस नहीं चलता, बल्कि न्यूयॉर्क टाइम को दिए गए एक इंटरव्यू में वो फैजान और फहीम के लवाहिकीन से मुआफी मांगने से भी इनकार कर देता है। No, I feel no remorse. I feel no remorse. लोगों को हुकूमत पर शदीद गुस्सा था, जिस पर सूबाई और वफाकी हुकूमत एक दूसरे पर कीचड़ उछालती है, मगर इस वाक़े के ठीक 47 रोज बाद वो हुआ जिसके ताने आज भी पाकिस्तान को सुनने पड़ते हैं। Osama bin Laden is dead. 2 मई को अमेरिकी कमांडोज पाकिस्तानी शहर एबटाबाद उतरते हैं और उसामा बिन लादेन का शिकार कर निकल जाते हैं। पाकिस्तानी शहरियों को अपने ही शहर में होने वाले इस वाक़े बारे तब पता चलता है जब अमेरिकी सदर बराक ओबामा इस खुफिया ऑपरेशन में जीत का ऐलान करते हैं। The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. दहशतगर्दी के खिलाफ
हजारों पाकिस्तानी फौजी जवानों की शहादत के बावजूद दुनिया भर में पाकिस्तान पर उंगलियां उठाई जाती हैं। अमेरिका इस ऑपरेशन को ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर का नाम देता है। इन वाकया से पाकिस्तान में खुफिया इदारे बहुत गुस्से में थे और इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक अमेरिका को पाकिस्तान में CIA सरगर्मियां महदूद करने का कहा गया। ये वो वक्त था जब पाकिस्तानी और अमेरिकी इदारे दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई भी करते थे। साल 2011 पाकिस्तान के लिए बदतरीन साल साबित हुआ, जहां जनवरी में रेमंड डेविस, मई में एबटाबाद ऑपरेशन और अक्टूबर में मेमो गेट स्कैंडल आया। मेमो गेट स्कैंडल में हुसैन हक्कानी पर यह इल्जाम लगा कि उन्होंने पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ अमेरिका से मदद मांगी और इस केस में भी हुसैन हक्कानी के वकील वही जाहिद बुखारी थे जिन्होंने रेमंड डेविस का केस भी लड़ा था। जाहिद बुखारी की बेटी उस्मा बुखारी अब भी पंजाब हुकूमत में अहम वजारत पर हैं। इस वाक़े के 6 बरस बाद रेमंड डेविस ने एक किताब लिखी, दी कॉन्ट्रैक्टर, जो पाकिस्तानी और इंटरनेशनल मीडिया की एक बार फिर जीनत बना। इस किताब के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, पढ़ता जा और शर्माता जा। अमेरिकी कौंसल जनरल लाहौर कारमिला को यह केस खुश असलूबी से हैंडल करने पर CIA ने सील मेडल दिया। आज रेमंड डेविस केस को गुजरे 16 बरस हो चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि इस केस के गिर्द तमाम किरदार आज कहां पर हैं? रेमंड डेविस की रिहाई के सिर्फ 1 साल बाद अप्रैल 2012 में मकतूल फैजान हैदर की अहलिया जहरा हैदर और सास को लाहौर में उनके घर कत्ल कर दिया जाता है। जून 2012 में सुप्रीम कोर्ट वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीने अदालत में नाअहल करार दे देती है। 11 जुलाई 2020 को वकील जाहिद बुखारी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर जाते हैं। वो लाहौर में कोविड की वजह से जेरे इलाज थे, जबकि 23 फरवरी 2022 को वज़ीर दाखिला रहमान मलिक भी इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में दुनिया फानी से कूच कर जाते हैं। तब के सदर आसिफ अली जरदारी आज भी सदर मुमलिकत हैं, जबकि वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ आज बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।